Okay. We were doing in the code pen, or we were doing in the code pen, or we were doing in the Visual Studio Code. Just tell me that, because code pen. Okay, code pen. Okay, fine. Fine. Okay, let's start it. I think time is already. Yeah. Let's start it. Time is already. Hmm. Okay, so last time what we did, that we did the basics of our HTML, right? Yes, sir. Yes. Okay, let's start again. I'm sharing my screen. Let me see. Let me do the one. Okay, students, you can also open your camera, so that we can have a good interaction. No need to shy. Okay, whatever we did in the last. Who is creating? Who is creating in the canvas? Hmm. Tab. We already did tags. I know. Let's do it a little bit of brush up again. So, what is tags? Tags is a building block of the our website, right? As we all know that if you are making the house, right, the building blocks to make the house is bricks. Bricks, right? Same, if you want to make your website, wait, if you want to make the website, we can say website. The building block is tags, okay? Tag. And tags is written in this way. Yes, this one. All right. Yes or no? Are you able to understand? Students, can you see my screen? Is it visible? Yes, sir. Hmm. Tags. Okay. See, tags have you can say the starting tag and ending tag. We have starting tag and ending tag, right? So suppose H1, for example, I'm making H1. H1 is basically used for heading. Most of the people already know. Okay, so this one. Yes. So what we will say, this is the starting tag. Okay, this one is a starting tag. This one. Hmm. This is the starting tag, and this is our ending tag. Somebody please tell me what is the difference between the starting tag and ending tag, just by looking at it. Tell me the main difference. Anybody? Please open the mic and yeah, you can tell me. Students, are you there? Yes, sir. Yes, right. Kiran, correct. Forward slash. This is the only difference. Forward slash. Correct. Whenever you have to do the ending, place a forward slash also. Right. Now let's move to the our code pen. Okay, where I will be showing you multiple kind of. Yes. Let's learn something about the tags. Later on, we will do our basic, what is basic HTML and all that. We will do it later, but let's understand the tags first, right? So I'm writing here h1 and slash h1.
you can write anything here in the between it. Stu Valley. So basically H1 is used for giving the heading in your website, right? So everybody please write this on your code pen. Everybody please open the code pen and write like this. Tell me once you are done. Basically, I usually do not read the messages, so better you speak here because I can listen directly. Okay, H1 is for the heading. Okay, but we have a different size, right? So we have H2 also. If you write to value here, oh, sorry, actually I written both of them. Yes. Now then we have H2 also. So there is a slight difference between H1 and H2. Can somebody tell me what is the difference? What is the difference between? Nobody is speaking. What happened? What is the difference between H1 and H2? Font size. Sir, font size small हो गया. Yeah, font size a little bit small. Yes. Likewise, you can also do. We have H3, right? और small होगा. और हाँ हाँ और भी छोटा हो जाएगा. अरे हिंदी बोल सकते हैं हम. हाँ ठीक है. और छोटा हो जाएगा यहाँ पे. तो यस अगर आप 4 करोगे तो 5 तक जाएगा. हाँ 5 6 तक जाएगा. 6 तक. 6 तक है. ठीक है तो हमने यहाँ पे कम से कम आप 6 तक लिख सकते हो. ठीक है एक बार आप सारे ही ऐसे लिख लो और जब हो जाए तो मेरे को बताओ. हो गया सर. ठीक है सबका हो गया. सबका हो गया. उत्कर्ष, उपेंद्र, Yes, sir. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे चलो ये ऐसे तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग वेबसाइट पे. ठीक है और हमारे पास एक चीज और होती है. ये तो चलो हेडिंग लिखने का काम आ गया. आपने कभी वेबसाइट में देखा होगा. अब एक होता है हमारा पी टैग विच इज हम जिसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग. ठीक है पैराग्राफ है तो पैराग्राफ लिखने का काम आएगा. तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो. टू वैली इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल स्किल बिल्डिंग. ठीक है आपने देखा कि जैसे मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर तो वो कैसा पैराग्राफ में आ रहा है. ठीक है हम्म. अच्छा कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके मेरे सामने कोड करेगा ये वाला. एनीबॉडी? सर मेरे को पता है अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है. मैं गांव में हूँ ना इसलिए. लैपटॉप नहीं है तो लिखें कहाँ कोड. हाँ इसलिए तो लिखें दिक्कत कहाँ. होता है. तो मैं आप अभी तो लैप गांव में हूँ ले ना लो. इसलिए लैपटॉप नहीं है. ठीक है तो कब तक लैपटॉप ले लोगे आप. बाकी उत्कर्ष, उपेंद्र, किरण व्हाट अबाउट यू. आप लोगों ने किया. हाँ सर किया. शेयर करो स्क्रीन या थोड़ा सा देखना है मुझे.
Please, can you share the screen? यार ये तो अलग ही, वाह, ये बैकग्राउंड पिंक, ये कैसे हो गया ऑरेंज? बैकग्राउंड ले रखा है सर दोनों पैकेट में। कहाँ पे लिए दिखाना? अभी तो मैंने मतलब सेट किया है इसको कहीं से बस डिफॉल्ट आया बेटा सर मेरे पास। अभी अरे सी एस एस में डिफॉल्ट अभी होगा। आया है ना, हाँ सी ठीक है, एस एस सी पे एस होगा एस ये सी एस तो। एस एक बार दिखाना। ड्रैग उसको ऐसे पकड़ के ऊपर करोगे तो ठीक है यार। वो तो ठीक है, चलो हो रखा, ये ओके। सेट करना। इसको हटा लो, वैसे तो भी डिफॉल्ट आ रखा है, तो पूरा हटा लो इसमें जो भी लिखा हुआ है। हाँ अभी सही है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ, हेडिंग हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब देखो हमारे पास और भी तरीके के टैग होते हैं, ठीक है। ये तो बी टैग हो गया, अब होता है हमारे पास, चलो एक और होता है इटैलिक। बेसिक बेसिक टैग सारे कर लेते हैं। इटैलिक हो गया यहाँ। अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोई मेरे को बताओ क्या चेंजेस आ गया है इसमें, इस टेक्स्ट में? इटैलिक पॉइंट हो गया। हाँ सर लिटिल इसमें बिट स्लैंटेड और यू टिल्ट थोड़ा सा है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको भी एक बार ट्राई करो। सर H1 का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है वैसे? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इसका देखना पड़ेगा, बाय द वे, लाइक अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो वो तो कर सकते हो, पर मे बी अराउंड 100 पिक्सल है इसका लगभग, वी कैन से। हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा तो कैसे करते हैं। लाइक अगर एक पेज पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें H1 यूज करना चाहिए, H2 यूज करना चाहिए? देखो क्या होता है ना, कि मैं वेबसाइट का एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ। वेबसाइट टेम्पलेट, चलो इधर ही देख लेते हैं, ये वाला, दिस वन। अब जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, तो अब हमें पता है ना कि आवर विजन जब लिखना है तो ये तो हेडिंग ही होगी, राइट। हम्म। तो जब हेडिंग होगी तो हम लोग H1 में ही लिखेंगे इसको। तो यहाँ और पे ये H2 बात, यूज नहीं कर सकते ऐसे? हेडिंग तो। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ देखो वो चीज डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा डिजाइन देना चाहते हो अपने वेबसाइट को, राइट। डिजाइन के ऊपर है, और कितना कौन सा लुक, कौन सा साइज जो है वहां पे फिट एक्चुअल में आ रहा है, तो वो आपके पर डिपेंड करता है। ओके। हाँ, बेसिकली वैसे आजकल कोई भी ऐसे मतलब H1 H2 यूज नहीं करता है, बेसिकली सब H1 ही यूज करके उसको छोटा बड़ा कर लेते हैं, तो यही होता है आजकल। और स्टाइलिंग हम लोग करेंगे और छोटा बड़ा उसको कर लेंगे, तो वो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ऐसी वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमारी इटैलिक हो गया हमारा। अब देखो एक एक टैग होता है हमारा BR, ठीक है, किसी को मालूम BR क्यों यूज करते हैं? पता है रो बी किसके आर लिए? ब्रेक 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 लाइन, यस। ब्रेक तो लाइन। ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। तो हम्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और लिखूँ बी टैग के यूज करके, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि टू वैल्यू, अगेन लिखा टू वैल्यू, तो आप देखोगे ये थोड़ा सा बोल्ड आता है, राइट। बी मतलब बोल्ड है।
तो कोई भी टेक्स्ट अगर आपको थोड़ा बोल्ड में करके लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसका ना एग्जांपल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने ये पैराग्राफ देखा होगा, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल लग रहा है कि ठीक है, ट्रू वैली इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल स्किल बिल्डिंग। अब आपको टेक्निकल जो वर्ड है इसको बोल्ड में करना है, तो आप कैसे करोगे? इस वर्ड को करना है सिर्फ बोल्ड में। बी बी लगा देंगे। हाँ, इसके आसपास आपको, आगे और पीछे। हाँ हाँ, इसको बी लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे बी। यस। तो देखो कैसे ये पूरा होगा, ठीक है, ये देखो कैपिटल में होगा, राइट। ऐसे इटैलिक करना हो तो किसी भी वर्ड के आसपास आई टैग लगा दो, तो वो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी चीज, और उसके बाद हमारा होता है कौन सा, आई वी। एक होता है हमारा अंडरलाइन, यू टैग। इसको यू करके लिखते हैं हम लोग, इसके नीचे आता है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन। हम्म। आप भी साथ साथ मेरे कोड लिखते रहो, मैं आखिरी में क्लास में देखूंगा आपने क्या लिखा है नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन टैग होता है, इसके लिए अंडरलाइन आती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास, हम्म, अच्छा, एक होता है हमारे पास डी एल, ठीक है। आपने कोई भी मान लो, हम्म, जैसे आपने स्टिक डिलीट, स्टिक स्टिक स्टिक। हाँ हाँ, तो बेसिकली ये जैसे के ऊपर कटी हुई लाइन आ जाती है, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए आपको डिलीट टैग यूज कर लो, ठीक है। हो गया इतना? आपने लिख लिया अपने कोडिंग में इतना? लिख लिया आपने अपने कोडिंग में इतना फाइल पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। सबका हो गया? व्हाट अबाउट किरण, उपेंद्र? एक यस सर मिनट हो गया। एक मिनट, सुमित्रा ने बोला यस, जिसके पास लैपटॉप अभी है नहीं, वो तो वो लिख ही नहीं डायरी रही में होगी। लिखे दिए। तो तो लिख कहाँ रहे हो हाथ में? अच्छा। हाँ। तो उसने ही ऐसे बोला और बाकी किसी ने नहीं बोला, चलो ठीक है। उत्कर्ष, उपेंद्र, व्हाट अबाउट यू किरण? हाँ सर हो गया। ठीक है, ठीक। ठीक है, अगला है मुझे हमारा पता कौन? है सर। हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं अरे मैं आई वाज जस्ट क्रैकिंग अ जोक। ठीक है, डिलीट हमारे पास हो गया, ब्रेक हो गया। अगला कौन सा हमारे पास टैग? अच्छा, एक सुपर टैग भी है हमारे पास। ओके, सुपर। देखो सुपर के लिए क्या लिखते हैं ना कि स्क्वायर जैसे, स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, जैसे हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट के ऊपर कोई लिखना हो, जैसे आप अगर नॉर्मली यहाँ पे कुछ H1 में लिख दिया आपने, जैसे लिख दिया आपने कि स्टू वैली ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, राइट। अब स्टू आ गया है, और आपको यहाँ पे कोई भी पावर दिखानी है ऊपर इसकी, तो सुपर अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा। बाय द वे इट इज नॉट शोइंग हियर, इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन।
H1 के अंदर आएगा ना तब। हाँ H1 के अंदर लिख दूंगा तो फिर तो आ ही जाएगा, पर हाँ हाँ। वो कैपिटल भी तो हो जाएगा ना, फिर वो भी मतलब वैसा बन जाएगा। ठीक हेडिंग। है, अभी चेंज हो रहा है लाइन, तो मैं एक काम करता हूँ कि लेट्स ट्राई आई टैग। हाँ, अभी काम कर रहा है। बेसिकली यही प्रॉब्लम है H1 और P टैग के साथ, ये प्रॉब्लम है कि जब भी आप लगाओगे तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में भेज देता है उसको। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है H1 और P टैग के साथ। ठीक है, तो सुपर किस लिए यूज होता है कि जैसे कोई भी थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए कुछ किसी कोई भी आइटम। देखो इसी की तरह एक और होता है। हाँ, उसका नाम है सब, SUB। और सब होता नीचे है नीचे दिखाने के लिए, हाँ नीचे। नीचे देखो। आप सबने लिख लिया हो तो बता देना मुझे। टेल बार। हम्म। देखो अगला है, अगला अब क्या है ना कि बहुत अलग है। ठीक है, कुछ टैग्स के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास। तो एक टैग होता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी लगता है, दैट इज मार्क्यू। ठीक है, मार्क्यू क्या होता है, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से या ब्रेकिंग न्यूज के लिए। हाँ ऊपर से नीचे, हाँ वो भी कह सकते हो आप। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे भी। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको टेक्स्ट? हाँ बताइए, कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे टेक्स्ट? नॉर्मल। नॉर्मल? हाँ। पर वो घूमता हुआ नहीं दिख रहा? हाँ मतलब हाँ मूव घूमता मूव हो हुआ रहा है है। वो तो। हम्म। तो ये जो घूमना है, अगर घुमाना है तो ऐसे ही आपको मार्क्यू के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मार्क्यू में भी बहुत हमारे पास डायरेक्शन होती है। जैसे अभी क्या कर रहा है कि ये टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा राइट। है, राइट? तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है। तो अगर डायरेक्शन चेंज करनी है आपको, तो यहाँ पे अगर मार्क्यू टैग पे मार्क्यू आप डिरेक्शन लेफ्ट। डायरेक्शन, यस डायरेक्शन आप लिखोगे, यहाँ पे राइट कर दोगे ना अगर, तो ये फिर राइट की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, देखो डायरेक्शन अब राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, राइट। तो यस ये हो गया हमारे पास। अप भी होता है, अप करोगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर जा रहा है, डाउन करोगे तो नीचे जाएगा। ठीक। ये टैग इंटरेस्टिंग है, राइट? काफी बढ़िया दिख रहा है वाला। ठीक है, तो जिसने लिख लिया है पूरा कोड, एक बार दिखा सकता है मेरे को, जिसने लिखा हो ये सारे?
है कोई? यस सर। हम्म। वेरी नाइस। उपेंद्र, नाइस। ओके, गुड। कोई और है? कोई और भी कोड अपना शो करना चाहे? कोई और है, कोई दूसरा भी? सिर्फ एक ही ने कोड लिखा है, उपेंद्र ने? किरण, उत्कर्ष, व्हाट अबाउट यू? किरण, यू कैन शेयर द स्क्रीन। किरण, आर यू देयर? किरण, फाइन, वेरी नाइस। ठीक है। उत्कर्ष। व्हाट अबाउट यू? हम्म। फाइन। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अगर ऐसे कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक अप्रूव करना। अगर ऐसे कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे वो चेंज कर लो, अपना लेआउट ऐसे। तो कोड यहाँ लिखोगे और दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर लिया करो। ओके, ओके फाइन। सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इतना हमारा बेसिक टैग हो गया। उसके बाद मार्क्यू के बाद, ठीक है, एक होता है बटन टैग, वो भी बहुत अच्छा है। हम्म। बटन टैग होता है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर हाइड कर देता हूँ ताकि। ओके, देन वी हैव बटन। जैसे नाम से पता चल रहा है बटन है, तो बटन ही बनाएगा ये। यू कैन से एनरोल नाउ। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो बटन बना दिया एक, एनरोल नाउ। ठीक है, तो ये टैग बटन बनाने का काम आता है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे कि अब जैसे ये आप मार्क्यू ट्रू, मार्क्यू का टेक्स्ट देख रहे होगे, तो एक यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज जा रहा है। अब ब्रेकिंग न्यूज न्यूज के साथ आप ना क्या कर सकते हो कि एक यहाँ पे एंड में एक बटन भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आफ्टर इलेक्शन वर्ड एक अगर पेस्ट कर दोगे तो देखोगे यहाँ पे एक बटन भी आ गया, राइट? दिख रहा है, बटन भी चलता हुआ दिख रहा है। तो आप ऐसे एक बटन भी बना सकते हो। कोड देख लो अच्छे से।
मार्क्यू मार्क्यू खत्म होने से पहले ही बटन मैंने बना दिया। ठीक है, प्लेसमेंट अच्छे से देख लो आप, बटन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद मार्क्यू खत्म हो रहा है। टैग में गलती मत कर देना, नहीं तो भले ही वेबसाइट पे शायद सही दिखे पर वो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। भले ही काम करेगा, गलत लिखने के बाद भी काम कर जाए, पर बाद में एरर आ जाएगी, तो इसलिए शुरू से ही सही लिख के चलना है। ठीक है, ये तो चलो हो गया बटन, और बटन हो गई हमारी। तो ये जितने भी थे हमारे टैग थे, बाकी आप गूगल पे और ढूंढो तो शायद और मिले, और जो बेसिक बेसिक हैं यही वाले हैं। ठीक है, देखो अभी टैग, अभी क्या है ना कि हमारा टैग बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, अभी कंसेप्ट आता है यहाँ पे जो बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। एट्री एट्रीब्यूट किसी को मालूम है एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट, व्हाट इज एट्रीब्यूट? ओके, अच्छा अभी तो मैंने बताया नहीं, तो मालूम कैसे होगा? ओके, ओके, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। कौन कर रहा है ड्रॉ स्क्रीन पे? हम्म, attributes provide additional information about elements। देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे हमने अभी क्या करा था, जैसे मार्क्यू बनाया था। ठीक है, हमने मार्क्यू मार्क्यू टैग हमने बनाया, और वहां पे मार्क्यू। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमने यार यहाँ पे कोई लिखा था, डायरेक्शन डायरेक्शन हम अप एंड डाउन वो सब लिख रहे थे। ठीक है, अप ऐसे करके। तो यार ये जो चीज थी ना यहाँ पे जो हमने लिखा है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, इस चीज को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं, कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो एट्रीब्यूट होता है। फाइन।
हम्म ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है एट्रीब्यूट्स। समझाओ क्या होता है मेरे को। उत्कर्ष। यस सर। क्या होता है एट्रीब्यूट? तो किसी भी टैग के लिए हम कोई स्पेसिफिक चीज बता सकते हैं, जैसे मार्की के लिए हमने डायरेक्शन बता दी, या फिर हम हम्म। हेडिंग के लिए उसके लिए एक अलाइनमेंट बता सकते हैं कि वो बीच में आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। राइट राइट, तो करेक्ट। जैसे कोई भी, हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई भी होती है तो हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी एट्रीब्यूट के चलते ही हमारे पास दो तीन टैग हैं, ठीक है, मैं वो कवर करता हूँ, जिसमें बेसिकली हम लोग यूज करेंगे ये कवर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमारे पास आ गई, यू कैन से, सबसे पहले आ गया हमारे पास एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्या होता है? जैसे आपने क्लिक टू ओपन वेबसाइट, बेसिकली एंकर टैग ये होता है कि जैसे हाइपर लिंक होती है, राइट, जैसे कोई भी टेक्स्ट दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे उस टेक्स्ट पे तो किसी दूसरे वेबसाइट चली जाएगी, दैट इज एंकर टैग, ठीक है। बट अभी मैं प्रेस करूंगा तो मेरी कोई दूसरी लिंक पे नहीं जा रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रखा कि कौन सी लिंक पे जाना चाहिए। तो एट्रीब्यूट कैसे दोगे? आप लिखोगे एच रेफ इज इक्वल टू डबल कोट, और कौन सी लिंक यहाँ चुकाना चाहते हो, सपोज फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट की लिंक है, मैं ये चिपकाना चाहता हूँ ये वेबसाइट की लिंक, ठीक है। तो भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा लिंक है, गूगल, ओके लेट मी पेस्ट ओनली गूगल, गूगल की लिंक हमने डाल दी यहाँ, ठीक है, गूगल। अब मैं इस बटन पे यहाँ पे दबाऊंगा इस टेक्स्ट पे तो दैट विल गो टू द गूगल, क्लिक ऑन द ओपन वेबसाइट, तो अगर आप दबाओगे तो वैसे तो यहाँ पे नहीं खुल रहा, ओपन नहीं हो रहा, पर ये काम करेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोड पेन ऐसा सिस्टम है कि ये ओपन नहीं कर रहा, पर अगर हम लोग दूसरी किसी विजुअल स्टूडियो कोड पे जब हम लोग कोड करेंगे तो ये काम करेगा अच्छे से, ठीक है। तो आप ऐसे एच रेफ यहाँ पे डाल, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? हाँ या ना? एनीबडी?
एंकर टैग बना लिया आप लोगों ने? काम कर रहा है? हेलो, क्या हुआ सबको? हम्म। उपेंद्र, इज इट वर्किंग? हाँ, ढंग से। एंकर टैग क्यों काम आता है? एंकर से जैसे हमें किसी वेबसाइट पे जाना है, किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो एंकर टैग का हम यूज कर सकते हैं। राइट। देखो, अब क्या होता है कि एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके एक और टैग है हमारे पास, इमेज टैग। ठीक है, IMG। इमेज में हमारा एट्रीब्यूट रहेगा SRC, विच इज लिंक ऑफ द वेब, लिंक ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज टैग भी बना सकते हो आप, और यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा यहाँ पे, तो दैट इज एट्रीब्यूट। तो गूगल पे जाके आप कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा लो। फॉर एग्जांपल, चलो मैं ये उठा कर सोचता हूँ, शायद हो जाए। नहीं हो रही। यू कैन राइट एस्थेटिक वॉलपेपर। ठीक है, तो जैसे मैंने ये पिक्चर उठानी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉपी इमेज एड्रेस का, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस करके पेस्ट इट है। इफ यू गो डाउन, यू विल सी द इमेज, राइट? यू विल सी द इमेज। अगर इस इमेज को थोड़ा छोटा करना है, तो यू कैन गिव वन मोर एट्रीब्यूट, विड्थ 100। देखो, 100 में तो बहुत छोटा हो गया। यू कैन गिव 500। 500 में दोबारा वेब से हो गया 300। सीधे मैंने विड्थ ही दिया है बस, और हाइट एक और उसके, हाइट ऑटोमेटिक छोटी हो। ठीक है, तो ये मेरे को कोई भी एंकर टैग और इमेज टैग कोई भी मेरे को शो कर सकता है बना के अभी। होगा ना, शो में किसने कर लिया?
winner of India's leading B2B travel portal 2019. This is image. Okay, fine. Yes, it's working. किसकी स्क्रीन थी ये? सर मेरी screen। अच्छा अच्छा, ओके. What about others? उत्कर्ष, किरण, किरण, सुवेली. Fine, good. ठीक है, तो इमेज भी हमने कर लिया और एंकर टैग भी हमने कर लिया होगा. ठीक है, अब कौन सा बचा? लेट मी सी. नेक्स्ट. अब देखो, जैसे बटन था ना, मेरे को अब दिखाता हूँ. यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट और देंगे हम. अब एट्रीब्यूट क्या होगा ना, कि थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए काम आएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बटन बनाया था, तो लेट मी टेक दैट बटन अगेन. ठीक है, तो अभी आपको पता है यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दे रखा, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल बटन. ठीक है, इस बटन का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, इस बटन की साइज बढ़ा सकता हूँ, बाकी बहुत कुछ. तो एट्रीब्यूट में आपको क्या देना है यहाँ पे? आपको लिखना है स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोड. क्योंकि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का, देखो अभी क्या है ना कि ये बार बार नीचे जा रहा है, तो मैं अब पिछले सारे कोड डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, इमेज को छोड़ के बाकी सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ. हाँ, अब देखो आपको बटन दिख रहा है वाइट कलर का, तो अगर मैंने स्टाइल लिखा और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, और आप लिख सकते हो लाइट ग्रीन कलर. देखो लाइट ग्रीन कलर ये होता है. ठीक है, अभी आपको दिख रहा है बटन बन गया. अब इसमें आपको थोड़ी सी बॉर्डर भी दिख रही होगी ब्लैक ब्लैक, उसको हटाने के लिए आप लिख सकते हो बॉर्डर नन. तो कोई भी बॉर्डर दिखेगी नहीं. ये देखो बटन. ठीक है, आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, और फिर कॉलन लिखनी है, और फिर एक्चुअल वैल्यू एंड देन सेमी कॉलन. ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी लिखनी है, तो कॉलन के बाद फिर प्रॉपर्टी एंड देन कॉलन और उसकी वैल्यू देन सेमी कॉलन. सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, बहुत जरूरी है. आपने लिख लिया सबने, ये जो अभी तक हमने किया है बटन पे? यस सर। हम्म आप लोग क्या करना है ना अभी, कम से कम आप 3-4 बटन बनाओ, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट लिखो और उसका कलर भी डिफरेंट करो.
डिफरेंट डिफरेंट कलर के बटन बना के दिखा दो मेरे को। तो कौन स्क्रीन शेयर करेगा? Who will share the screen? Hmm. Nice. You can use light red क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्स्ट मार्ज हो रहा है और थोड़ा सा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है उसका। रेड की जगह लाइट रेड ओके यूज कर सकते हो और ग्रीन की जगह लाइट ग्रीन यूज कर सकते हो। ओके हम्म। हम्म। पूरी तरीके से बिना चेंज किए स्क्रीन शेयर बंद? अच्छा ये एक मिनट। ओके चलो कलर कोड भी याद है तुम्हें? हाँ सर मुझे कलर कोड याद है इसका रेड। वाह, ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर से क्या पहले? नहीं नहीं कुछ मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनर। क्या बात है, कलर के पूरे कोड याद है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिस वन अभी भी रेड रेड ही है, लाइट रेड नहीं हाँ हुआ। लाइट रेड का मुझे याद नहीं है। इसलिए फिर लाइट रेड लिख लो। हम्म। देखो, HTML हमारे वेबसाइट मेकिंग में बहुत सारे कलर्स हैं जो किसी नाम लिखने पे आ जाते हैं, तो बहुत सारे हैं, मैं अब दूंगा नाम सबके। ठीक है, ये तो कलर ही गायब हो गया। हाँ मतलब ग्रे आ रहा है उसमें मतलब लाइट लाइट रेड रेड, लाइट। ब्लू कर देता हूँ सबसे। ब्लू कर देता हूँ या फिर हाँ, ब्लू आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से अब सब लोग हम लोग इतना ही रखते हैं आज। और क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ें कवर करूंगा, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा हमारा। अम, हाँ, स्टाइलिंग पे आ गए हम लोग। ठीक है, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी स्टाइलिंग। और बाकी कलर्स देखेंगे, कितने सारे कलर्स होते हैं। और आइकन्स कैसे बनाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आइकन बनाना हो गया या कलर पे करना हो गया या स्टाइल करना हो गया, ये सब ओके हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यस। किसी को कोई डाउट दे कैन आस्क मी। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू सर।